Good morning, students. It is class number 7 of chapter number 13, which is probability. And as you know that we were doing Bayes theorem, right? And in exercise 13.3, we have already done up to question number 8. Now we have question number 9. What is that question? Let us see. Two groups are competing for the position on the board of directorate of a corporations. The probability that the first and the second group will win are are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding product probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the product introduced by the second group. तो पहले ऐसे लिख देते हैं कि क्वेश्चन है कि two groups are competing for the position of board of directorate of a corporation. The probability that the first and the second group will win. Okay. So even be the event. First group wins, and E2 be the probability second group win. ठीक है, ओके। और ए आपको पता है, ए हम इवेंट कौन सा लेते हैं, जिसमें लेते हैं कि जिसकी हमने प्रॉपर्टी निकालती है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ E1 ये भी हमारे पास गिवन होगा, प्रॉपर्टी ऑफ E2 दैट इज आल्सो गिवन, probability of A upon E1 that was also given, probability of A upon E2 that is also given. Let us see what are these probabilities. देखें इसमें क्या है, the probability that two groups wins is 0.6 and 0.4. So probability of this is 0.6, this is 0.4. Probability of A upon E1 stands for कि introducing new product when first group wins. So that was 0.7. The probability of introducing a new product is 0.7. Further, if the first win, तो ये आपकी 0.7, that is 0.7, and the corresponding probability is 0.3 for second group. ठीक है, so that means A upon E1 stands for introducing new product when first group wins, so that is 0.7. It is also already given. And probability of A upon E2 stands for introducing new product when the second group wins, that is 0.3 is also given. Now question is, we have reverse question. Find the probability that the new product introduced by the second group. That means we have to get probability of E2 upon A, that is probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E1 into probability of A upon E1. Second group का था, we'll find the probability that the new product introduced by the second group, so E2 upon A, so that is E2, or plus probability of E2 into probability of A upon E2. So that is given by, what is that? Probability of E2 is 0.4 into 0.3 over 0.6 into 0.7 plus 0.4 into 0.3. So 0.12, 0.42 plus 0.12. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.12 ओवर 0.45654, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 6 अपॉन 3 से काटो, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 2 से तो 2/9,
ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज सपोज a girl throws a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4? देखो हमारे पास दो कंडीशंस ये है इवन इवेंट का कि सी थ्रू, लेट इवन बी द इवेंट. देखो क्वेश्चन नंबर 10. Let even be the event. She gets 5 or 6, or E2 be the event. She gets 1, 2, 3 और 4. ठीक है. अब ए जिसकी हमने प्रॉपर्टी निकालनी होती है क्या है? इफ सी गेट्स 1, 2, 3, 4, सी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोज द नंबर ऑफ हेड और टेल्स. इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, ओके, तो ए इज द प्रॉपर्टी, ए इज द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो प्रॉपर्टी ऑफ इवन, इवन मीन्स सी गेट्स 5 और 6, तो 2/6 हो जाएगा. Probability of E2 that is 4/6. ठीक है. Probability of A upon E1. A upon E1 stands for what is probability of A upon E1? A upon E1 stands for C gets exactly one head when C throws 5 or 6. जब उसके पास 5 और 6 आया तो ऐसे केस में गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसने इसमें कहा था कि अगर इफ सी गेट्स 5 और 6, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स. जब वो इस वाले केस में सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो उसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 दैट इज 8. तो अब देखते हैं कैसे कि 4 हेड लिख देते हैं, 4 टेल लिख देते हैं. ठीक है. और ऐसे ही 2 हेड्स 2 टेल, 2 हेड्स 2 टेल and head tail, head tail, head tail, head tail. ठीक है. Those are total outcomes, right? अब exactly one head, exactly one head वाला कौन सा इसमें? एक ये है, एक exactly one head वाला ये है, एक ये है. तो इसमें 3 है और टोटल आउटकम कितना है? 8. तो 3/8. तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी है 3/8. फिर क्वेश्चन समझेंगे. सॉरी, इट वाज 2/6, ये 3/8. फिर क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन क्या था कि इफ सी गेट्स 5 और 6, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स. तो जब वो 5 और 6 आता है उसके पास, तो कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करती है. तो ऐसे केस में हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए ये टोटल आउटकम. ठीक है. तो अब क्वेश्चन ए अपॉन E1 स्टैंड्स फॉर, A1 अपॉन E स्टैंड्स फॉर सी गेट एग्जैक्टली वन हेड इफ सी थ्रोज 5 और 6. जब 5 और 6 आया होगा तो ये वाला केस था, तो इसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की कितनी है? 1, 2, 3, जिसमें एग्जैक्टली वन हेड है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/8. और सेकेंड वाले केस में उसने क्या बोला है कि A upon E1 stands for, A upon E1 stands for, A upon E1 stands for, E2 stands for getting exactly one if C throws 1, 2, 3 और 4. तो ऐसे वाले केस में उसने क्या बोला था हमें? इस वाले केस में उसने क्या बोला था कि इफ सी गेट्स 2, 3 और 4, सी टॉसेस अ कॉइन वंस. तो एक ही बार टॉस करती है. तो इसका मतलब H और T आ गया इसका. और इसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. नाउ क्वेश्चन इज इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, what is the probability that C threw 1, 2, 3 or 4? That means again we have to get probability of E2 upon E. तो probability of E2 इसकी वैल्यू रख देते हैं. Probability of E2 that was 4/6 into 1/2 over 2/6 into 3/8
प्लस 1/6 4/6 इंटू 1/2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 से 2 कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ये 2 2 जा 2 3 जा, ये आ जाएगा 1/3 अपॉन, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/3, तो दैट इज 1/3 अपॉन 8 3 जा 24, 3 प्लस 8, 1/3 इंटू 24 अपॉन 11, 3, 8/11. 8/11 is the answer of this question, right? So that was question number 10. Now we have another question. Question number 11. A manufacturer had 3 machines A, B and C. The first operator A produces 1% defective item, where as the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items. A on the job for 50% of the time, and B is the job of 30%, of C है 20%. सब कुछ दिया हुआ इसमें. Of time defective is produced. What is the probability that it was produced by machine A? तो that is so simple. ये आप कर लेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है. अब देखो बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12. अगेन इंपॉर्टेंट वन. यस, या twelfth question, which is important one. Question is, yeah, question is, a card from a pack of 52 is lost. From the remaining card of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability that the lost card was being diamond. A card is lost. तो a card is lost, तो मैं even event दे देता हूं कि let even be the event. Card lost is diamond. A diamond card is lost. Or E2, a non-diamond card is lost. और हमने किसकी प्रॉपर्टी निकालनी है? क्वेश्चन है, 2 cards are drawn at random are found to be both diamonds. तो getting 2 diamond cards. क्वेश्चन फिर समझो कि वी हैव अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फ्रॉम विच अ कार्ड इज लॉस्ट. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, एक कार्ड लॉस हो गया, तो उसने कहा कि रिमेनिंग कार्ड्स में से हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड में से हमने 2 कार्ड्स निकालने हैं. तो ये बताओ, उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड वाज बीइंग द डायमंड. ठीक है. तो ये इसके लिए देखो कि अब देखो, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड लॉस्ट कार्ड इज डायमंड. तो डायमंड कितने होते हैं? 13. 13 में से हमने एक कार्ड जो है लॉस हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 13/52, यानी कि 1/4. और प्रॉपर्टी ऑफ E2 नॉन डायमंड, नॉन डायमंड होते हैं 39. तो 39 में से 39/52, दैट इज 3/4. ठीक है.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, ए अपॉन इवन स्टैंड्स फॉर, अब एक मिनट इसमें देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, A upon even stands for getting 2 diamond card when the last card was diamond. अब getting 2 diamond card when the last card was diamond, जब last card diamond था तो अब उस जो हमारे पास पैक ऑफ 52 कार्ड्स है उसके अंदर कितने 12 डायमंड होंगे। तो 12 में से, क्योंकि हम देखो 2 अपॉन 51C2, क्योंकि लास्ट कार्ड जब हमारे पास डायमंड का था तो अब डायमंड उसके अंदर लगे होंगे 12, उन 12 में से कोई सा 2 और 51C2, क्योंकि एक कम हो गया। एंड इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये होता है आपके पास पता है ना कि 12C2 को कैसे लिख देते हैं हम 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2, और इसको लिख देते हैं 51 इंटू 50 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 चलो इसको ऐसे रहने दो अभी, तो दैट इज 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50, इसको ऐसे रहने दो। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू देखो, आप ए अपॉन ई टू स्टैंड्स फॉर गेटिंग 2 डायमंड कार्ड व्हेन द लॉस्ट कार्ड वाज नॉन डायमंड। जब नॉन डायमंड लॉस्ट कार्ड रहा होगा तो डायमंड तो उसके अंदर 13 ही हुए, फिर तो 13C2 ओवर 51C2, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 2 ओवर 51 इंटू 50 अपॉन 1 इंटू 2। कॉम्बिनेशन को हमने सिंप्लीफाई किया ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं, हमने E2 अपॉन ए निकाला है, E1 अपॉन ए निकालना है, जरा देखते हैं व्हाट इज दैट। हाँ, ये क्वेश्चन था कि 2 cards are drawn from card, both are diamond, find the property of lost card being a diamond, मतलब E1 अपॉन ए हमने निकालना है, तो property of E1 अपॉन ए, that is property of E1 into property of A upon E1 upon property of E1 into property of A upon E1 plus property of E2 into property of A upon E2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास 1/4 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 है ना। पहले सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, एक साथ ही हो जाएगा, तो देखो इजी हो जाएगा हमारे पास 1/4 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50 प्लस 3/4 13 इंटू 12 अपॉन 51 इंटू 50। ठीक है, तो देखो जो डिनोमिनेटर है ये तो सबके हटा दो, ये सारे हट गए, ऐसे ही 12 भी सबके हटा दो, तो कितना आया 11 अपॉन 11 प्लस 39, तो 11 अपॉन 50। ठीक है, 11/50 is the answer. That was question number 12, right? Now we have last question, which is question number 13. Property of A speak truth is 4/5. A coin is tossed. A reports that a head appears. Find the property that actually there was a head. तो बेटा ये तो सेम लास्ट एग्जांपल है, बिल्कुल वैसे करना है, बहुत इजी है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपने जो है देखो, अब हमारे पास बेस थ्योरम से सारे क्वेश्चंस हमारे पास डिस्कस हो चुके हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी और एक बाद में भी दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब किसी को भी इस थ्योरम में डाउट नहीं होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको ठीक से करना है। नेक्स्ट क्लास विल start with the probability distribution, right? So till then, bye bye, have a nice day.